Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we learn chapter number 1 Rational and Irrational Numbers of a 8th standard. Now let's start the learn chapter number 1. In that we learn first of all to show rational numbers on number line. After that we learn comparison of rational numbers, then decimal representation of rational numbers, and lastly we learn irrational numbers. Okay, now let's start this chapter number 1. So now students, if you see rational and irrational numbers, what is the chapter name? Is a rational and irrational numbers. So there is a something regarding to the numbers. ये जो chapter है कुछ numbers के regarding है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड और रिकॉल टाइप्स ऑफ नंबर जो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ओके, पिछले स्टैंडर्ड जो है उसमें ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हुए हैं. सो फर्स्ट वी लर्न सी नेचुरल नंबर्स. The numbers which are the countable are called the natural numbers. So which are the numbers are the natural? So 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite, these all are the natural numbers. After that, whole numbers. So if we include 0 in the natural numbers or counting numbers, so it's become whole numbers. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to infinite, these all are the whole numbers. Now say third, integers. So in integers, if the numbers which are the 0, 1, 2, 3 up to infinite, and the left side of the 0, if they are the include -1, -2, -3 up to infinite, these all are the integers. All the negative and positive numbers of the whole numbers, okay, they all are the integers numbers. अगर आपको यहाँ पर देख रहा होगा, all the natural numbers, all the whole numbers, and all the natural and whole numbers are the integers. okay, दोनों भी natural numbers and whole numbers ही integer बन जाते हैं. and lastly what is meant by rational numbers. अगर नंबर अगर यहाँ पर m by n के फॉर्म में हो, the numbers in the form of a m by n is called as a rational numbers. okay, so rational numbers, if we take an example -25 by 3 or 4 by 3 or -2 or 32 by 3, these are all are the rational numbers. They are in the form of a m by n. In that m and n both all are the integers, but only n is not a equal to 0. okay, n जो है यहाँ पर ये integer है, but just only exclude 0. okay, but m is all are the integers numbers. okay, अभी देखिए अगर आपको यहाँ पर डाउट आ रहा होगा -2 how it is in the form of a m by n. so -2 we can write as a -2 by 1. if there is nothing any denominator of this number, so there is always 1 at this place. okay, तो यहाँ पर ये in the m by n के फॉर्म में क्या बन जाएगा -2 by 1. so these all are the rational numbers, ध्यान में रखना है. and यहाँ पर देखिए all natural numbers, all whole numbers, all integers, all are the rational numbers. okay, just only ध्यान रखना है in the m by n फॉर्म में m by n, m and n all are the integers, just only n is exclude 0. n is not a equal to 0, but m is equal to 0. तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 0 by 2, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 0. सो 0 इज ए रैशनल नंबर, यहाँ पर 0 भी आ सकता है. ओके, नाउ वी ऑल्सो लर्न देर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. दोनों किसी भी देर आर द टू रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 1 and 2. in between 1 and 2 there are the infinite rational numbers between 1 and 2. for example 1 by 2, then many of the numbers are there. for then again 6 by 8, these are all are the between 1 by 2. ये जो numbers है ये 1 by 2 के बीच में आते हैं. therefore there are infinite rational numbers between any two rational numbers. ये ध्यान में रखना है. okay, now we see how to show rational numbers on the number line. हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रैशनल नंबर्स है इस नंबर लाइन पे शो करने हैं. नाउ देयर इज अ वन लाइन, आई विल मार्क ऑल द नंबर्स ओवर हियर. 0, देयर इज अ 1, 2 and 3. in the left hand side of the 0 there is a -1, there is a -2 and there is a -3. I need to be show 7 by 3, 0, -1, then -2 by 3, then 3 by 3. okay, I need to be show all these rational numbers on this number line. तो यहाँ पर देखिए 7 by 3 कहाँ पर आ जाएगा, 7 by 3 कहाँ पर आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी डिवाइड ऑल द यूनिट डिजिट बाय द 3 इक्वल पार्ट्स. ये जो यूनिट है
हमें 3 इक्वल पार्ट्स में इसको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी इसका डिनोमिनेटर है इक्वल सेम डिनोमिनेटर है, हमें उससे सभी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट डिजिट है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। सो 1 2 1 2 3 these are the 3 equal parts. So from 1 to 2 there is also 3 equal parts, 1 2, then 2 to 3, similarly minus 1 to 0, तो यहाँ पर 1 2, then 1 2 1 and 2. So 7 by 3 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए 7 by 3, so we can write as a 7 by 3 in the form of 7 multiplied by 1 by 3. So there is a 1 digit in the वैल्यू ऑफ 1 डिजिट इज ऑफ 1 by 3. ये जो 0 to ये जो डिजिट है इसका यहाँ पर 1 by 3 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 पार्ट जाना पड़ेगा फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द 0. सो 1 2 3 4 5 6 and 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 by 3. वी कैन ईजिली ऑल्सो राइट एज 2 plus 1 by 3 because there is a 2 and there is a plus 1 by 3. 2 plus this 1 by 3. Okay, आई थिंक आपको ये 7 by 3 का पॉइंट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। नाउ वी शो नंबर 0, तो 0 यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0. वी कैन इजीली शो 0. -1 विल बी एट दिस प्लेस, सो -1 विल बी देयर. देन -2 by 3, -2 by 3 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए -2 by 3, सो वी कैन राइट एज अ -2 multiplied by 1 by 3. सो वी नीड टू बी गो -2 प्लेस फ्रॉम द 0 ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 by 3. देन लास्ट नंबर इज अ 3 by 3. 3 by 3 कहाँ पर आ जाएगा, देखिए सो वी कैन राइट एज अ 3 by 3 इन द फॉर्म ऑफ 3 multiplied by 1 by 3, 3 by 3, 3 multiplied by 1 by 3. सो फ्रॉम 0 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 by 3. बिकॉज 3 1 जा 3 1 जा, इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 ही आता है, तो यहाँ पर ये 1 आ गया, तो 3 by 3 विल बी कम एट दिस 1 प्लेस. ओके, आई थिंक ये आपको सभी नंबर जो है ये इस नंबर लाइन पे शो करना अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा. नाउ वी सॉल्व वन मोर न्यूमेरिकल ओवर हियर. एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं नंबर लाइन का. इफ आई नीड टू बी शो दिस नंबर्स 5 by 4, देन -3 by 4, 8 by 4, -6 by 4. ओके, मुझे ये 4 नंबर जो है इस नंबर लाइन पे शो करने हैं. सो देयर इज अ 0 1 2 3 and 4. Similarly here is a 1 -1 -2 -3 and is a -4. नाउ देखिए यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट है हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये 4 है, तो यहाँ पर हमें 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे आ जाएगा, ओके तो देखिए यहाँ पर 1 2 and 3, दिस 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. ओके, आपको ये जो इक्वल पार्ट्स करना है विद द हेल्प ऑफ द स्केल करना है, ठीक है. सो 1 2 and 3, तो ये पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 इक्वल पार्ट में बन जाएगा. तो 0 to 1. सिमिलरली वी ऑल डिवाइड ऑल द डिजिट ओवर हियर 1 to 2 ऑल्सो. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. अगेन ओवर हियर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and 1 2 3. Now we need to be show 5 by 4 on this number line. 5 by 4 कहाँ पर आ जाएगा, 5 by 4 is equal to, we can write as a 5 multiplied by 1 by 4. So 5 multiplied by 1 by 4, from the 0 of the right hand side of the 0, fifth place 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 by 4. Okay, 5 by 4. Now second number is a -3 by 4. -3 by 4 कहाँ पर आ जाएगा, -3 by 4 is equal to, we can write as a -3 multiplied by 1 by 4 is equal to, again we can write as a -3 multiplied by 1 by 4. देखिए 0 from the 0, the left hand side of this 0, 1 2 3 थर्ड प्लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 by 4. Okay, now we show 8 by 4. Okay, 8 by 4. So we can write as a 8 multiplied by 1 by 4. देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो 8 by 4 आ जाएगा यहाँ पर. ओके, 8 by 4. अभी देखिए 8 by 4 is equal to 2. हाउ 8 by 4 is equal to 2? बिकॉज 4 1s are 4 2s, इट्स कम
2, तो इसकी वैल्यू जो है 2 ही आएगा, तो यहाँ पर ये 8/4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज -6/4, ओके, -6/4 वी कैन राइट इज -6 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सो 0 से हमें लेफ्ट हैंड साइड तक 6 प्लेस तक जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 विल बी कम एट दिस प्लेस, -6/4। अभी देखिए यहाँ पर 5/4, ये जो नंबर है 5/4 वी कैन ऑल्सो राइट इन द फॉर्म ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू ऑल्सो 1 प्लस 1/4। ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पर हो गया, प्लस ये जो डिजिट है इतना छोटा वाला, ये बन जाएगा 1/4। तो ये हम 1/4 1 प्लस 1/4 के फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ वी सी comparison of rational numbers. If you need to compare both two rational numbers in the less than or greater than, okay, or equal to, हमें क्या करना होगा, दो रैशनल नंबर्स हमें कंपेयर करने हैं, कौन सा नंबर यहाँ पर ग्रेटर है, सो विच नंबर इज अ ग्रेटर वन, विच नंबर इज अ लेसर वन। वी ऑल्सो नो दैट -2 and 2, in that 2 is greater than -2, or -2 and -3, in that -2 is greater than the -3। ऑलरेडी हमने ये लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है, -2 is greater than the -3, और सिमिलरली -6 is less than the -1। ओके, ये रूल आपके ध्यान में होगा, ये आपको पता ही होगा, -6 is less than the -1 and -1 is less than the 1। ओके, ये जो 1 है, पॉजिटिव 1 प्लस 1 से -1 ये लेस नंबर होता है, ठीक है। एंड इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर, अगर मैं यहाँ पर ये जो रैशनल नंबर्स है उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स नंबर जो है 5/4, फॉर एग्जाम्पल a/b, हम लिख सकते हैं यहाँ पर a/b, ये हमारा एक रैशनल नंबर्स है। इफ आई मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय एनी रैशनल नंबर्स, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, इफ वी से k is any non-zero rational number, so a multiplied by k and b multiplied by k, so its answer is ak divided by bk, so a/b is always equal to the ak divided by bk। तो इन दोनों का जो आंसर है ये सेम ही रहेगा, ये इट्स विल नॉट बी चेंज, इसका जो आंसर है कभी भी चेंज नहीं होगा, जस्ट हमें ध्यान रखना है k इज नॉट इक्वल टू द 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए 5/2, इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 2, मैंने दोनों भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर 4, सो 5/2 इज इक्वल टू द 10/4। इसका जो वैल्यू है कभी भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर देखिए हम अगर यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करें तो 5 डिवाइडेड बाय 2 क्या आंसर आ जाता है इसका 2.5, एंड 10 डिवाइडेड बाय 4, देखिए यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 ज़ा 8, 2 आ गए यहाँ पर पॉइंट लिया, 4 5 ज़ा 20, सो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो दोनों का भी आंसर 2.5 ही आता है, ठीक है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर, इफ आई मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, सो वैल्यू विल नॉट बी चेंज ऑफ दिस रैशनल नंबर्स, ये जो रैशनल नंबर्स इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। नाउ वी कंपेयर सम रैशनल नंबर्स। If there is a 5/2 and 3/6, okay, these are the two rational numbers. We compare this 5/2 and 3/6 in that which number is greater one or which number is a smaller one, or these two numbers are the equal or not, okay. So we use these symbols over here, okay. Now देखिए यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना पड़ेगा, so you use the LCM method, okay. Now see here 2 and 6, in that 6 is LCM of 2 and 6, so 5/2 and 3/6, okay. If I multiply this numerator and denominator by 3, so we get common denominator of these two numbers, so 5 multiplied by 3, 15/6, and this is the second number which is the 3/6, in that 15/6 and 3/6 which number is the greater one, because देखिए यहाँ पर दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर मैं यहाँ से हटा दूँ तो 15 एंड 3 में कौन सा नंबर यहाँ पर ग्रेटर वन है, 15 इज अ ग्रेटर वन, सो वी कैन ईजिली कंक्लूड दैट
15/6 is greater than the 3/6. Okay, so we can write 5/2 is greater than 3/6. Okay, because हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, 5/2 एंड 3/6, इनमें हमें कंपेयर करना है. ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना पड़ेगा 5/2 is greater than 3/6. Now we solve some more numerical over here. 4/8 and 3/6, these are the two rational numbers over here. Okay, so solution is that we multiplied numerator and denominator of these numbers by 6, and we multiply and numerator and denominator of these numbers by 8. Okay, so 4/8 is equal to 4 multiplied by 4 multiplied by 6 divided by 8 multiplied by 6, and here 3/6, in that 3 multiplied by 8 divided by 6 multiplied by 8. Okay, so we get the answer 4 multiplied by 6, 6 4s are 24, so divided by 8 6s are 48. Okay, similarly 3 8s are 24 and 8 6s are, okay, now see here 8 6s are 48. In that, now see here 24/8 and here also 24/8, means these two numbers are equal. Okay, तो यहाँ पर देखिए इक्वल का साइन आएगा, मतलब 4/8 and 3/6, these two numbers are the equal one. Okay, now देखिए यहाँ पर 4/, आप यहाँ पर एक और मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं. 4/8, इन दैट इफ वी डिवाइड दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो हमें मिल जाएगा 2/4. अगेन वी डिवाइड 2, सो वी कैन गेट 1/2. तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 1/2. सो इन 3/6 ऑल्सो 3 1s are 3 2s are 6. ओके, तो यहाँ पर भी 1/2 ही आएगा. तो दोनों का भी जो वैल्यू है रैशनल नंबर्स का, इनकी हाफ हाफ आती है, इसलिए दोनों भी नंबर्स क्या है, इक्वल है. ओके, अगर यहाँ पर एक रैशनल नंबर्स अगर नेगेटिव वाला है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, इफ देयर इज अ वन नंबर इज अ नेगेटिव वन, फॉर एग्जांपल -7/9 एंड 4/3, इन दैट हमें ध्यान रखना है ऑलवेज all the negative rational numbers are lesser than the all positive rational numbers or the zero. Okay, all the negative, because there is a one number line 0 1 2 up to infinite. तो यहाँ पर -1 -2, तो देखिए यहाँ पर 0 and 1 2 3 से ये सभी जो नेगेटिव वाले नंबर्स है, रैशनल नंबर्स है, ये क्या है, सब ही लेसर देन है. तो इसलिए -7/9 इज लेस देन द 4/3. ओके, 4/3. अगर यहाँ पर दोनों भी रैशनल नंबर्स नेगेटिव वाले आए तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोनों का जो इंटीजर्स जो है, दोनों की यहाँ पर भी जो m की जगह पर नेगेटिव इंटीजर्स आए तो क्या होगा. फॉर एग्जांपल -4/3 एंड -3/8, दीज आर द टू नंबर्स. ओके, तो इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर ग्रेटर है और कौन सा नंबर यहाँ पर छोटा है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो इसलिए हम एक छोटी सी कंसेप्ट देख लेते हैं. नाउ देखिए यहाँ पर 2 and 3, in that which number is greater 1, 3 is greater than the 2. So if I say -2 and -3, in that which number is greater 1, so -2 is greater than the -3. So what we do, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर रिवर्स हो गया. यहाँ पर 2 and 3 में 3 को क्या था, ग्रेटर था, बट यहाँ पर -2 and -3 में -3 क्या हो गया, ये स्मॉलर हो गया. तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए -4/3 एंड -3/8, इनमें से अगर हम यहाँ पर इनके पॉजिटिव की वैल्यू निकालें, पॉजिटिव 4/3 एंड पॉजिटिव 3/8, इनमें से कौन सा यहाँ पर नंबर ग्रेटर 1 है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर जो है इक्वल करने के लिए, यहाँ पर था 3/8, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से. तो यहाँ पर 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 4s are 32, so divided by 24, and similarly in this case multiply by 3, both numerator and denominator. So 3 3s are 9 divided by 8 3s are 24. Therefore देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32/24 and 9/24. In that which number is greater 1, 32/24 is greater than the 9/24. Okay, so what we conclude, 4/3 is greater than 3/8. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस आंसर का यहाँ पर रिवर्स करना है माइनस में. जैसे हमने यहाँ पर देखिए 2 and 3 में 3 ग्रेटर था, हमने रिवर्स किया, जो छोटी वैल्यू थी माइनस में
बड़ी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए कौन सी यहाँ पर छोटी वैल्यू 3/8 इज लेसर 1, सो -3/8 इज ग्रेटर देन द -4/3। ओके, आई थिंक आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अभी देखिए और एक हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इफ देर इज अ -7/3 एंड -5/2, इन दैट विच नंबर इज अ ग्रेटर वन और विच नंबर इज अ लेसर वन, वी फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इनके पॉजिटिव जो नंबर्स है ये यहाँ पर लिखेंगे, इनका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस नंबर को हम मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 14/6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो वी गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15/6। तो 14/6 एंड 15/6 इनमें से कौन सा नंबर यहाँ पर बिगर वन है, तो यहाँ पर 15/6 ग्रेटर देन द 14/6। सो वी से 7/3 and 5/2, in that 5/2 is greater than the 7/3. So make a reverse of this answer. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7/3 is greater than the -5/2. ओके, और एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इफ देर इज अ 3/5 एंड 6/10, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का यहाँ पर हमें कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए इनका डिनोमिनेटर जो है यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हमें यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इफ आई मल्टीप्लाई दिस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, सो वी कैन गेट 10 ओवर हियर। सो इनका दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर इक्वल बन जाएगा। सो 3/5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी कैन गेट 3 to the 6 एंड 10। तो ये नंबर आ जाएगा ये वाला यहाँ पर 6/10। तो देखिए 6/10 एंड 6/10 दोनों भी नंबर यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब 3/5 एंड 6/10 ये बोथ आर द इक्वल, दिस टू नंबर्स आर द इक्वल। नाउ वी सी सम यूजफुल रूल्स। ओके, अभी हम देख लेते कुछ यूजफुल रूल है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन इफ a/b दिस वन रैशनल नंबर्स एंड c/d this is our second rational numbers. Okay, in that b and d both are the positive one. Okay, ये जो b and d है ये दोनों भी पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों भी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। सो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर आप पूछे तो -a/-b हो तो देखिए माइनस माइनस कट हो जाता है, यहाँ पर a/b इसका आंसर आ जाता है, तो ये b जो है यहाँ पर पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर a/-b हो तो ये माइनस साइन आप क्या करेंगे, ऊपर डालेंगे, तो -a/b बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा अभी। तो यहाँ पर देखिए रूल क्या है, फर्स्ट रूल है इफ a मल्टीप्लाई बाय d, ये यहाँ पर का e और ये वाला d मल्टीप्लाई बाय d इज लेसर देन b मल्टीप्लाई बाय c, देन ओके इफ यहाँ पर देखिए if a multiplied by d is lesser than the b multiplied by c, then a by b is less than the c by d. ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल है, आपको लिखे रखना है। सेकेंड देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, इफ a मल्टीप्लाई बाय d इज ग्रेटर दैन b मल्टीप्लाई बाय c, देन क्या हो जाएगा, a बाय b इज ग्रेटर दैन c बाय d। ठीक है, एंड लास्ट रूल इफ a multiplied by d is equal to b multiplied by c, then a by b is equal to c by d। ठीक है, आया समझ में। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो 5/3 एंड 7/4 यहाँ पर ये दोनों नंबर से हमें इनका कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर देखिए a और b कौन कौन से नंबर यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा c एंड ये बन जाएगा d। तो हमें क्या करना पड़ेगा, a मल्टीप्लाई बाय d इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय d एंड b मल्टीप्लाई बाय c, इसका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय d 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 5 4 जा कितने हो जाते हैं, 5 4 जा 20 एंड 7 3 जा 21। ओके, तो इन दैट विच नंबर इज ग्रेटर वन, 21 इज ग्रेटर दैन द 20। सो देखिए यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय d इज लेसर दैन द b मल्टीप्लाई बाय c। तो यहाँ पर कौन सा रूल यहाँ पर देखिए, कौन सा रूल यहाँ पर आ जाता है, फर्स्ट वाला रूल। सो a बाय b
इज लेसर देन द 7/4। ठीक है, आया आपके समझ में कैसे हम यहाँ पर रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई बाई डी इज लेसर देन द b मल्टीप्लाई बाई c, देन a बाई b इज लेसर देन द c बाई d। ठीक है, ये रूल यहाँ पर आपको यूज करना है। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट विच इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमें क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है रैशनल नंबर्स का। अभी देखिए यहाँ पर एक नंबर है 7/4। इन दैट व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, 7 के हम यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, इफ आई डिवाइड 7/4, सो 4 1 जा, यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा। सो 4 के टेबल में 3 नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर से लिया 0। 4 7 जा 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, -2 आ गया, अगेन 0। 4 5 जा 20, सो यहाँ पर 20 गए, यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ गया, तो इसका आंसर क्या बन कर जाएगा 1.75। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस रैशनल नंबर का हमने फॉर्मेशन किस में किया, इस डेसिमल फॉर्म में किया। तो इसे ही कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। बट देखिए यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब यहाँ पर ये जो इसका आंसर है यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर ख़त्म हो गया। कई बार क्या होता है, ये जो वैल्यू यहाँ पर बढ़ती चली जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया, तो इसलिए हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, डेसिमल फॉर्म हम इसे कहेंगे। कौन से वाले वैल्यू को, यहाँ पर 1.75 को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। अभी देखिए यहाँ पर और एक हम यहाँ पर न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो है 11/3। ओके, 11/3। तो इसको हम यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसे इरेज कर देता हूँ। 11/3, देखिए इफ़ आई डिवाइड 11/3, सो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर देखिए 2 आ जाएगा। देन 3 और यहाँ पर पॉइंट लेंगे, 3 6 जा 18, तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया। अगेन 3 6 जा 18, तो यहाँ पर देखिए अगेन 2 आ गया। तो ये जो 6 है कंटिन्यूसली यहाँ पर आता चले जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 3.666 अप टू इन्फाइनाइट। ठीक है, हमें पता नहीं यहाँ पर ये कब तक आएगा। तो इसे ही कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इसे हम यहाँ पर इस टाइप पे भी लिख सकते हैं। 3.66 के ऊपर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट देना है। ठीक है, तो हमें क्या पता चलेगा, 6 जो है यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है, एक के बाद ये आता ही चला जाएगा। 6 जो है यहाँ पर नॉन टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3.6 के ऊपर एक डॉट लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ 7/6, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी डेसिमल फॉर्म में हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 7/6 अगर हम यहाँ पर लिखे और अगर हम यहाँ पर 7 को 6 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 1 जा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। देन हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया तो 0 आ गया। अगेन 6 1 जा, देयरफॉर 6 यहाँ पर लिया, 4 आ गया। अगेन 0 यहाँ पर ले लिया। देन देखिए यहाँ पर 6 6 जा 36, तो यहाँ पर 6 6 जा 36 हमने ले लिया यहाँ पर। अगेन 4 आ गया, अगेन हमने 0 लिया, देन अगेन 6, तो यहाँ पर देखिए 36 हमने ले लिया, 36, तो यहाँ पर अगेन 4 आ गया। तो ये यहाँ पर 6 जो है यहाँ पर कंटिन्यूसली आता ही चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1.166 कंटिन्यू 6 जो है यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसे हम यहाँ पर 1.16 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 6 के ऊपर यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 7/6 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। और जो हमने 1.75 किया किसका, कौन से वैल्यू का, 7/4 का, तो ये क्या बन जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। आई थिंक आपको ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और एक यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दे लेते हैं।
इफ देर इज 22/7, ओके, तो 22/7 को हमें क्या करना है, यहाँ पर 22 को 7 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आ जाएगा, 7 3 × 21, तो यहाँ पर 1 आ गया। अगेन हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया, अगेन 7 1 ज़ा, तो यहाँ पर 7 आ गया। देन यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 बाकी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देन अगेन 7, यहाँ पर 0 ले लिया हमने, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पर 28 ले लिया, यहाँ पर 2 आ गया। ओके, देन हमने ऊपर से 0 ले लिया, अगेन 7 2 ज़ा 14, ओके, तो यहाँ पर 14 आ गया, तो यहाँ पर 6 आ गया, 0 ले लिया हमने। देन देखिए यहाँ पर 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पर 8 ले लिया हमने, तो यहाँ पर 56, देखिए यहाँ पर 4 आ गया अगेन। तो यहाँ पर फिर से हमने यहाँ पर 0 ले लिया, अगेन 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ पर 35 ले लिया, तो यहाँ पर देखिए कितना गया, यहाँ पर 5 आ गया माइनस, अगेन हमने 0 ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यू यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, ये 50 जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते, 49, देन 1 आ गया। अगेन देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है, अगेन देखिए 1 0 ले लिया, 7 1 ज़ा, देखिए यहाँ पर 7, देन अगेन 3 आ गया। देखिए यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पर, यहाँ से ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 4 2 8 5 7, ये जो नंबर है ये रिपीट होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3.142857, 142857, अगेन 142857, ये यहाँ पर चलता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसके फॉर्म हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो 3.142857, अगर यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ सेट जो है यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, किसी जो नंबर है यहाँ पर जो सेट है उसका रिपीट हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर एक कैप लगा देंगे, इसको बार करेंगे, 3.142857 बार, इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बन जाएगा, 3.142857, इसके ऊपर हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। ओके, आई थिंक आपको ये अभी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है इरेशनल नंबर्स। ओके, इन एडिशन टू रैशनल नंबर्स, ओके, रैशनल नंबर्स के यहाँ पर देखिए, रैशनल हमने ऑलरेडी देखा, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, अगर यहाँ पर m/n के फॉर्म में कोई नंबर है एंड m and n बोथ आर द इंटीजर्स बट ओनली n इज नॉट इक्वल टू 0, both m and n are integers and n is not equal to 0, thus all the numbers we call as a rational numbers one. Okay, -22/7, then -21/3, again 4/3, again -2, -0 -3, or many of the numbers. Okay, these are all are the rational numbers. तो देखिए देर आर मेनी मोर नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। सो इन दैट दे आर नॉट अ रैशनल नंबर्स, दैट इज दे आर इरेशनल नंबर्स। ओके, जो भी नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स के अलावा जो भी नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल √2 इट्स ए इरेशनल नंबर्स। तो √2 को हम यहाँ पर देखिए इस नंबर लाइन पे कैसे हम कहाँ पर शो करें, तो हम वो देख लेते, ठीक है। ओके, ऑन नंबर लाइन पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर 0, ओके, यहाँ पर 1, देन 2, तो यहाँ पर -1, अगेन -2 कंटिन्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 0, ये 1 एंड 2, तो यहाँ पर 0 को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे O से, तो यहाँ पर A1 जो है यहाँ पर A हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दिस ऑन नंबर लाइन द पॉइंट A शोज द नंबर 1, ये जो पॉइंट A है ये क्या शो कर लेता है, नंबर 1 शो कर लेता है। तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम पॉइंट 1, तो हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अभी हम इस परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट ले लेंगे, उसे हम कहेंगे P, तो सच दैट OA इज इक्वल टू AP। तो OA का यूनिट 1 है तो AP का भी यूनिट 1 ही होगा, और हम यहाँ पर OP जो है यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेंगे, सेगमेंट OP हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा P पॉइंट है,
सो ओ ए इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, तो इसका यूनिट कितना है यहाँ पर 0 to 1 1 यूनिट इसका है। ठीक है, अभी देखिए ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर ये 90 एंगल बन जाएगा। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी ये कौन से टाइप का ट्रायंगल बन जाएगा? यस करेक्ट, इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। So we can use Pythagoras theorem over here to find out this OP, length of this OP, because AP is 1, OA is also 1, therefore we can easily find out the OP. Therefore OP square is equal to OA square plus AP square by Pythagoras theorem। ठीक है, तो यहाँ पर किससे हमने यहाँ पर लिखा? तो by Pythagoras theorem। ठीक है, हमने ये पाइथागोरस के थ्योरम से लिखा। देन देखिए यहाँ पर OP कितना है, यहाँ पर OP हमें फाइंड आउट करना है। तो OA है यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू बन जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू 2, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, on both side, so we can easily get OP स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पर √2 आ जाएगा। देयरफॉर ये स्क्वायर रूट और ये 2 चला जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? √2। तो हमें क्या मिल गया? OP की वैल्यू हमें मिल गई, OP की वैल्यू है √2, तो यहाँ पर हमने लिया √2। अभी देखिए OP इज इक्वल टू √2, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? कंपास में OP जितना डिस्टेंस लेना है, तो आपका कंपास का एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर P से आपको क्या करना है? यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है? एक आर्क आपके कंपास के हेल्प से यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो ये जो आर्क यहाँ पर इस लाइन पे यहाँ पर जो डिनोट करेगा, इसे हम कहेंगे पॉइंट Q। और ये पॉइंट OQ कितना डिस्टेंस है? ये OQ इज ऑल्सो √2, बिकॉज देखिए वी नो ऑल द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल। तो देखिए OP एंड OQ, ये जो O सेंटर का हमने यहाँ पर आर्क ड्रॉ किया, तो OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ बन जाएगा ना, क्योंकि हमने OP जितना ही डिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ किया है इस नंबर लाइन पे, तो OQ इज ऑल्सो √2। तो हमने इस √2 को इस नंबर लाइन पर डिनोट किया, शो किया। ठीक है, अभी देखिए अगर हमें यहाँ पर -√2 इस नंबर लाइन पर शो करना है, डिनोट करना है। ठीक है, तो -√2 कहाँ पर आ जाएगा? हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट ओनली टेक OQ डिस्टेंस एंड मार्क इन दिस साइड। तो हम क्या करेंगे? इस साइड पे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, तो ये जो पॉइंट आ गया ये बन जाएगा -√2। ठीक है, इस लाइन इस साइड पे ये बन जाएगा -√2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने प्रूव किया कि √2 इस नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर वी विल प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर्स इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड। ओके, जो √2 जो है यहाँ पर इरेशनल नंबर्स है, हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, वी विल आल्सो सी दैट डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर्स इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग जो है वो हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी लर्न पाई। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? वी जस्ट टेक फॉर द कैलकुलेशन पर्पज द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 and 3.14, but we also learn that pi it's not a rational number। पाई जो है यहाँ पर रैशनल नंबर्स नहीं है, इसका मतलब दिस इज ए इरेशनल नंबर्स। ठीक है, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इट्स ए इरेशनल नंबर्स। बट देखिए यहाँ पर 22/7 एंड 3.14 दिस बोथ आर नंबर रैशनल नंबर्स, ये दोनों भी रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको और एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है। द नंबर्स विच कैन बी शोन बाय पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, जो भी हम नंबर जो है इस पॉइंट नंबर लाइन जो है यहाँ पर हम शो कर सकते हैं, उसका पॉइंट हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, उसी सभी नंबर को हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। एंड देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके, so √2 is an irrational numbers
सो आपको यहाँ पर और एक ध्यान में रखना है, 3√2 इट्स ऑल्सो इरेशनल नंबर्स, 7 प्लस √2 इट्स ऑल्सो इरेशनल नंबर्स, अगेन 3 माइनस √2 दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. ओके, देन बिकॉज देखिए यहाँ पर 3/√2, अगर हम यहाँ पर इसको रैशनल नंबर कहे तो 3√2/3 इसे भी हम यहाँ पर रैशनल नंबर कहना पड़ेगा, बट इट्स नॉट ए रैशनल नंबर. ये दोनों भी रैशनल नंबर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ